we had discussed about lyophilic and lyophobic. I told you there is a strong affinity between dispersed phase and dispersion medium. Okay, here low affinity between dispersed phase and dispersion medium. These are also called intrinsic colloid. These are also एक्सट्रिंसिक कोलॉइड. ठीक है, एक्सट्रिंसिक कोलॉइड. आई विल गिव यू द PDF ऑल्सो. ये ईजी है प्रिपेयर करना, ये डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर करना है. ठीक है, जैसे गोल्ड सोल वगैरह होते हैं. और ये स्टार्ट सॉल्यूशन इज़ द सिंपल एग्जांपल. स्टार्ट सॉल्यूशन. ओके, हाँ. और ये जितने भी मेटल सोल्स होते हैं, गोल्ड सोल, ये सब जो होते हैं, दे आर लायोफोबिक. ओके, so you can make this point. I will give you the PDF which will contain more than 6 or 5 points. Okay, so here one example like this you can do it. These are the main points, but some more points you will include that I will be providing you. Okay, so now multimolecular colloid. Multimolecular colloid, these are formed by the aggregation of large number of atoms or molecules which generally have diameters in colloidal range इसका less than 10 to the power 3 picometer. ओके, इसका मतलब होता है small molecules are joined together to form big molecules. Understood? Multimolecular are what? Small molecules aggregate and form large number of atoms or molecules. These are formed by the aggregation of large number of atoms or molecules which generally have diameters in colloidal range less than 10 to the power 3 picometer. से जो लेस के जो साइज़ के जो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो जॉइन होके लार्ज नंबर ऑफ ये बनाते हैं. ठीक है, बट ये जो जॉइन होते हैं ये आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर दिस. ओके, एग्जाम्पल सोल्स ऑफ गोल्ड, सल्फर. ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड. ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स में बदलना. अंडरस्टूड? ओके, सो these are what? These are multimolecular colloid. Okay, second is macromolecular colloid. Macromolecular colloid are what? These are macromolecular colloids are those in which dispersion phase are sufficiently big in size to be of colloidal dimensions. इसके साइजेस बड़े ही होते हैं और ये जुड़ के और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ऑफ कोर्स, बट देयर dispersed phase molecules are sufficiently big in size to be of colloidal dimension. colloidal dimension के देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत बड़े हैं साइज़ में. अंडरस्टूड? ओके, अ फ्यू नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टार्च. ठीक है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अंडरस्टूड? स्टार्च, सेल्यूलोज, ओके, प्रोटीन्स, वेरी बिग मॉलिक्यूल्स. Artificial macromolecules are polythene, plastic, polystyrene, etc. Okay, now associated colloid. Okay, associated colloid, this is a very much related term. The term is new but the thing is very much relevant with your earlier classes. Associated colloid or micelles, I think you might have remembered from the word micelle. These are certain substance which behave as normal electrolyte at lower concentration. ओके, एट लो कंसनट्रेशन मतलब अगर कम डाला जाए तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, बट अगर हायर कंसनट्रेशन में लिया जाए तो ये कोलॉइड्स की तरह बिहेव करेंगे. अंडरस्टूड? आई एम रीडिंग. These are certain substances which behave as normal electrolytes at low concentration but behave as colloid at higher concentration due to the formation of aggregates of small particle. क्योंकि एग्रीगेट बन जाता है. एग्रीगेट का मतलब एक क्लस्टर की तरह. अंडरस्टूड? क्लस्टर बन जाना. अंडरस्टूड? तो यू माइट हैव रिमेंबर्ड, कुछ याद आया आपको? क्लस्टर बनना, सोप का एग्रीगेट बनना. अंडरस्टूड? सोप मॉलिक्यूल का एग्रीगेट को क्या बोलते थे हम? मिसेल. दिस इज़ अ वेरी कॉमन एसोसिएटेड कोलॉइड. ठीक है, मिसेल यू रिमेंबर. अगर थोड़े कंसनट्रेशन में डाला जाए तो उसको एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट होगा. बट इफ़ द कंसनट्रेशन विल बी मोर, द पार्टिकल्स विल बी जॉइन एंड बिहेव लाइक अ कोलॉइड. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस is a soap molecule which is forming micelle, C17H35CONA, and you know this is the tail and this is the head. It is ionic and this is hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain, that is hydrophobic, and this is
हाइड्रोफिलिक, जो कि पानी से जाके पानी में रहेगा, एंड दिस विल बी जॉइंड विद द डर्ट मॉलिक्यूल। तो आई हैव टोल्ड यू इन क्लास 10th ऑल्सो कि ये डर्ट मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, दिस विल बी ऑयल लविंग, ठीक है, या हाइड्रोफोबिक बोल रहे हैं तो पानी से दूर रहने वाला लेकिन ऑयल के पास रहने वाला। तो ये ऑयल से जाके चिपक जाता था और पानी में इसका हेड होता था, लाइक दिस। हैव यू रिमेंबर, दिस वॉज द स्ट्रक्चर। ओके, सो this is the most common example of soap and detergent are most common example of this associated colloid which form spherical aggregates, understood, which were called micelle. Okay, now micelle formation takes place at a some conditions should be there, understood, particular temperature is needed। जब भी आप झाग बनाते हो देखना, ऐसा नहीं कि सर्फ डाल दिया और झाग बन गया, उसको क्या करते हो, थोड़ा हिलाते हो, है ना। तो शेक करने के बाद क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर, वी आर गिविंग सम एनर्जी, उस एनर्जी से थोड़ा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। आप कभी ऑब्जर्व करना, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर मीन्स द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अंडरस्टूड। ओके, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दाने डाल दिए और झाग बन गया, अंडरस्टूड। अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नीडेड, ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि हायर क्वांटिटी में ही वो कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नीडेड फॉर व्हाट, मिसल फॉर्मेशन। ओके, तो जब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो दिया जाता है फॉर मिसल फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज CMC। ओके, critical missile concentration, the concentration at which missile formation takes place, that is critical missile concentration, understood। okay, now